So my DMs were full of the doubts like मैम कैसे प्लेसमेंट कैसे हैं, CSIT के कैसे हैं. तो आज सारे डाउट्स एक साथ क्लियर करूँगी. ब्रांच वाइज जो भी रेशियो है सिलेक्शन का स्टूडेंट्स के वो ओवरऑल प्लेसमेंट्स क्या है और सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके आज क्लियर हो जाएगी. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज हम सारे प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स लेने वाले हैं. मुझे बहुत दिन से कंटिन्यूसली डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैम प्लेसमेंट का क्लास लेने में एमआईटीएस में प्लेसमेंट कैसा है बताइए, हमें एडमिशन लेना है. तो आज मैं सारे डाउट्स एक ही वीडियो में कवर करने का ट्राई करती हूँ. Okay, so let's move on to our first slide, and that is about our placements in MIT is actually good. So I would say that placements mostly depends on the market conditions, like whether the companies are hiring aggressively or not. So इस बार तो ज़्यादा companies आई नहीं थी because market scenarios were bad. And as I mentioned in the points as well, that first was there is no guarantee in any college of placement. You have to do everything by yourself. एंड आपकी कंसिस्टेंसी और आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है. नेक्स्ट थिंग, MITS में काफ़ी डिसेंट है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और इस साल तो आई थिंक इट वाज नॉट दैट गुड बिकॉज कंपनीज वर नॉट लाइक बॉन्ड्स वर एंडेड, उनके बॉन्ड एंड हो चुके थे कॉलेज के साथ. एंड दैट्स अ बिग इशू. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दो वी शुड नॉट expect like flood of offers in any college. But there is one thing, well prepared students will definitely get placed. Most people का myth रहता है कि placement guaranteed होती है, as some colleges mention that yeah we will provide 100% placement, but the real life scenarios are not like that. It's different. It completely depends upon your preparation. And the next myth is MIT has a very high volume of offers every year. So it's not like that. MIT has a high volume of students as well. So it's very difficult to make them all place. सारे के सारे बच्चे place नहीं हो सकते हैं. And the next myth is everyone gets multiple offers. So yeah, not everyone can get, but some of them can get multiple offers. Like as I had two offers. So it depends upon the student. Again, I will discuss this in the next slide. And high salary packages are common, so no, it's not like that. Mostly 3 to 5 LPA ही रहता है range salary का. And mostly colleges private हो या government हो, mostly sim यही है MP में. So next point is college placement cell will get you placed. So it's not compulsory. It completely depends on you again कि आपके पास जो opportunity है उसको आपको offer में convert करना है. Okay, so next question is about which companies came to MITS. So the number of companies and the quantity is not fixed. हर साल मार्केट के सिनेरियोज अलग होते हैं तो डिफरेंट कंपनी विजिट करती है. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ग्राफ मतलब सिंपल एक कंपैरिजन शो किया है. दैट इज़ अबाउट लास्ट ईयर एंड दिस ईयर्स प्लेसमेंट. तो लास्ट ईयर रिलेटिवली बेटर था कंपनीज ज़्यादा विजिट करने की. लास्ट ईयर कंपनीज विच विजिटेड वर Cognizant, LTI, and Accenture, Infosys. I think yeah, these were the companies which visited last year. But this year the scenario was different. Only LTI and Infosys came for mass hiring, and apart from them, a few more companies were there for CSIT and AI specialized branches. But for double E mechanical, civil, the scenario was completely different. So many companies visited. सो या मेनली आप मतलब कंपनीज जो विज़िट करती हैं यहाँ पे और जिसने लास्ट ईयर्स में विज़िट किया है वो एसेंचर, कॉग्निजेंट और LTI ही है. और इस ईयर तो एसेंचर भी नहीं आई थी. LTI इन्फोसिस वर ओनली मास हायरिंग कंपनीज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटको वॉज देयर, ओमनीबल वॉज देयर एंड न्यूजन वॉज देयर. Like mainly companies as of I remember. If you want the complete list, so you can follow our student community on the Telegram. एंड वहाँ पर आपको जो है ब्रांच वाइज सारे कंपनीज़ की लिस्ट मिल जाएगी. इस वीडियो में सब चीज़ें बताना इज़ नॉट पॉसिबल. सो या यू कैन चेक आउट माई टेलीग्राम पेज एंड यू कैन फॉलो देयर. द स्कैनर इज़ शोन इन द स्लाइड. ओके, सो अगेन एक और बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दैट व्हाट पैकेजेस वर ऑफर्ड. सो इस साल तो LTI और इन्फोसिस के पैकेजेस मैं आपको बताती हूँ जो मास हायरिंग के लिए थे. दैट वर 3 to 4 LPA एंड for not the companies which are not for mass hiring, that is Newgen or Protco. इन सबके offers Newgen का was 4.25 and Protco was for I think
इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उसमें ऐसा था कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में आपको पहले फ्री में वर्क करना है, एंड देन 2 मंथ्स के लिए आपको 20,000 पे करेंगे, एंड देन आपको फुल टाइम का 6 LPA मिलेगा। सो या दिस वॉज द थिंग। सो ऐसे कंपनी टू कंपनी दिस थिंग्स वेरीज, बट एवरेजेस ऑफ 3 to 4 LPA। एंड ओमनीफुल आई थी थर्ड ईयर के एंड में, उसका ऐसा था कि 10 to 25 के बीच में कुछ रेंज था। आई थिंक 25,000 दे वर गिविंग फॉर इंटर्नशिप, एंड देन 6 LPA फॉर फुल टाइम। तो ऐसी ही मोस्टली कंपनीज आती हैं जो इंटर्नशिप प्लस PPO देती हैं, एंड कुछ आती हैं जो डायरेक्टली आपको प्लेस कर लेती हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अगेन ऑन द कंपनीज एज आई टोल्ड। सो पैकेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड अगेन इन्फोसिस आई थी सेकेंड टाइम, जिसने मतलब फर्स्ट टाइम उसने मास हायरिंग में ऑफर दिया, एंड देन अगेन केम फॉर सेकेंड टाइम फॉर हायर पैकेजेस। द पैकेजेस दे ऑफर्ड द सेकेंड टाइम वर 6, 9 and 15 or 12 I think, or 21, yeah. And there were 4 students which got selected for the that higher packages for the interview I'm talking about. And after interview, I think 1 or 2 students got placed in Infosys higher packages. So yeah, again competition बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे पैकेजेस बढ़ जाते हैं, competition इतना बढ़ जाता है कि सिर्फ सिंगल्स 1 or 2 स्टूडेंट्स ही लेके जाती है कंपनी। तो ट्राई करना अपना बेस्ट दो आप, और ऑफ कैंपस अप्लाई करते रहो। अगेन आई वुड सजेस्ट यू, जो अभी कॉलेज में है, जो लेने वाले हैं, अगेन नेवर डिपेंड ऑन कॉलेज प्लेसमेंट्स। Okay, so moving on to our next slide, that is about how many offers that students get. So it's not compulsory that if you got one offer from one company, then you won't be allowed to sit in another. अगर आपके पास एक ऑफ़र है और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कंपनी में भी बैठूँ उससे हायर रेंज पे, तो आप बैठ सकते हैं। देयर इज़ नो इशू अंटिल अनलेस आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, देन यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द नेक्स्ट कंपनीज प्लेसमेंट। ओके, so there are some rules. I made a simple flowchart of it. Like you can go through it. It's very simple. Like if you got an offer, accepted, yes, then you will be blocked for the further placement session. And then if you did not get accepted that offer letter, then you can sit for another companies. There is also one rule कि अगर आपने for example 3 LPA पर किसी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, then you are allowed to sit only the twice times of this LPA. Like एंड अगर आपको बैठना है कि आप सोच रहे हो कि मैं 5 LPA की कंपनी में भी बैठ जाऊँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, कॉलेज विल नॉट अलाउ। ऑल्सो देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्वाइनिंग एक्सेप्ट कर ली है, आपका वर्क स्टार्ट हो गया है, एंड देन वहाँ पर जाके आपको कुछ भी इश्यूज़ आ रहा है, या फिर आपने किसी भी पर्सनल रीज़न के कारण वो जॉब कंटिन्यू नहीं किया है, तो आपको कॉलेज के थ्रू फिर प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने दिया जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉलेज यू आर प्लेस्ड। सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें माइंड में रखें। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में और फिर आपको प्लेसमेंट सेशन में बैठ रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें माइंड में रख के बैठना है। बिकॉज ये वीडियो मैं ओवरऑल सबके लिए बना रही हूँ, whoever is taking this college or whoever is in the college currently. Okay, so next slide is about can average students get placed. So yeah, definitely average students ही mostly placed होते हैं, because I think जो mostly advanced students होते हैं वो या तो either they go for higher studies or they go for off-campus placements, because there is a comparatively better and large pool of opportunities off campus. So एवरेज स्टूडेंट्स जो रहता है वो मोस्टली प्लेस हो जाता है कॉलेज में, बिकॉज it's first of all it's a very much luck based thing. So never think that you are average student and you won't get placed. अगर आपका luck अच्छा है, आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, तो definitely you will get placed. So I would say never lose hope, and आपको like mainly aptitude पे focus करना होता है और coding round पे to get the offer, and it's not that difficult honestly, आप कर लोगे if you are decent in aptitude and you know basic coding, then you can easily crack any company's offer. एंड या लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेस्ट है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, तो आप इंटरव्यूअर से ईजिली इंटरेक्ट करके बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शो करके भी एक ऑफ़र ले सकते हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारे जो हैं उन्होंने भी ये सेम चीज़ किया है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, तो बाकी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करी थी। So I would say that you should try actively participate in like club activities, and mostly the activities which include the leadership roles and teamwork. So you can improve your communication skills from there. Okay, so next slide is CGPA important? So yeah, for some companies it's important, and for
लाइक इट वेरीज कंपनी टू कंपनी ऑनेस्टली। अगर मैं आपको बोलूँ कि MITS में CGPA कंपलसरी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर किसी कंपनी का क्राइटेरिया रहता है कि 7 to 7.5 से प्लस चाहिए, तो इट्स कम्प्लीटली कंपनी डिपेंडेंट। एंड या बेसिक इज़ अबाउट 7.5। if you are having 7.5 as your average, it's very good. You are allowed to sit in any company. एंड मोस्टली ऐसा होता है कि जो आप थर्ड ईयर से थर्ड ईयर के एंडिंग में आपकी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपका सेकेंड ईयर का फोर्थ सेम का जो CGPA है वो अगर 7.5 है, तो भी आप अलाउड रहते हो। और थर्ड ईयर का भी सिमिलरली 7.5 है, तो आपको वो कंपनीज उसमें बैठने देती है। मोस्टली कंपनीज का नहीं रहता है। और जो मास हायरिंग वाली रहती है उनको तो आई डोंट थिंक दैट they ask for this. They ask for basic six. Six is like very minimal for any mass hiring company. 6 CGPA is good. But yeah, if you want to sit in every company, so 7.5 you should maintain, I would suggest. And yeah, there should not be any active backlog. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैक आती भी है तो ट्राई करो क्लियर कर लो उसी सेमेस्टर, उसको नेक्स्ट सेम तक लेके मत जाओ, वरना आपके लिए वो एक इशू क्रिएट कर सकता है। एंड अगेन इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑफ कैंपस, दैन दिस थिंग्स डजंट मैटर। वो कम्प्लीटली आपकी कंपनी पर ही डिपेंड करता है आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। Okay, so next slide is whether you should completely rely on college campus placements or not. So my answer is definitely not. You should never rely on college placements. It should be your backup option, but not your permanent option. Like forever you are thinking that yeah, अब तो college मिल गया है, मैं आराम से बैठ के मतलब मज़े करूँगा और लास्ट में जाके फिर प्रिपरेशन करूँगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क। माई सजेशन इज़ आपको थर्ड ईयर के एंड से ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए, एंड देन वो इंटर्नशिप को कंटिन्यू करके एज अ फुल टाइम ऑफर उसको ले लेना चाहिए। सो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग इफ़ यू आर लाइक सिटिंग फॉर एनी कॉलेज प्लेसमेंट। सो आई वुड सजेस्ट कि ऑफ कैंपस आप पहले ट्राई करो, उसके बाद ही बैठो। सी कॉलेज में आई नो दैट कॉम्पिटिशन इज बिटवीन योर फ्रेंड्स ओनली एंड योर बैचमेट्स ओनली, बट apart from if you would go off campus, then there will be lots of opportunities, and mostly third year students को सब लोग अलाउ करते हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली NIT आइसर्स में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ रहता है, लाइक समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप। यू शुड डेफिनेटली गो देयर एंड ट्राई देम। एंड आपको वहाँ पे जाके नेटवर्किंग करना चाहिए, अपना जो जितना भी हो सकता है अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करने का ट्राई करो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू नो लाइक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल लेट यू नो आपको कहाँ से अप्लाई करना है, नेटवर्क कैसे बनाना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करना है। ओके, सो सारी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं। नाउ आई विल टेक द कॉमन क्वेश्चंस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि JEC और MITS में कौन सा बेटर है। सो आई विल से दैट JEC में आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा ओल्ड मिलेगा, बट प्लेसमेंट वाइज वो कोर ब्रांचेस में अच्छा है। एंड MITS में काफ़ी आपको कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत सुंदर है उसका, और प्लेसमेंट्स भी डिसेंट है। सो अगर आपको थोड़ा सा सिटी वाइब्स और थोड़ा सा कैंपस लाइफ मैटर कर रहा है, सो यू शुड गो फॉर MITS। एंड इफ़ यू आर नॉट मच मोर कंसर्न अबाउट दैट, देन यू कैन गो फॉर JEC। प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगैन वो स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है। मोस्टली केसेस में हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चों ने ऑफ कैंपस पहले ही प्लेसमेंट ले लिया, दे डिडंट वेट फॉर द प्लेसमेंट सेशन टू गेट स्टार्टेड। सो अगैन और DAVV से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। DAVV इज़ द टॉप कॉलेज, GSITs आर द टॉप कॉलेजेस। एंड अगैन यही दो कॉलेज है मेनली, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो माई ऑनेस्ट रिव्यू इज़ आपको खुद से ही प्रिपेयर करना होगा। आप बाकी चीज़ें एक बार देख सकते हैं, जो स्टैट शो करते हैं कंपनी मोस्टली वो नहीं रहता है। ट्राई करो लिंक्डइन पे और कनेक्शन से बात करो, सबसे कॉन्टैक्ट करो, तो वो आपको और डेप्थ में बता सकते हैं उस कॉलेज के बारे में। जैसे कि मैं JEC से नहीं हूँ, मुझे JEC का उतना नॉलेज नहीं है, तो आप JEC में जो भी है लिंक्डइन पे स्टूडेंट्स हैं उनको फॉलो करो, उनसे कनेक्ट करो, उनसे ट्राई करो। जितना मुझे नॉलेज था उतना मैंने आपको बता दिया है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने के लिए भी। एंड अगेन अगर आपको कुछ भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक द सेपरेट वीडियो। थैंक यू।